hope you guys are all here and hearty, fit and fine. आज का सेशन जो है it is for the creative minds. To be precise, this is for the parents, for the teachers, and for all the khalas, for all the chachas, and for all the pupos. Anybody who has a regular interaction with younger kids, जिसको भी कहानी सुनाने का टास्क मिलता है, जिसके पीछे भी बच्चे शौक से बैठ जाते हैं कि आप हमें कहानी सुनाइए, ये सेशन उन लोगों के लिए। स्टोरी टेलिंग की जो तारीख है ना, it dates back to centuries. It is a centuries old thing that has been done from and this practice has been passed from one generation to another. Ancient humans क्या किया करते थे? I'm talking about cavemen. What did cavemen do? Like it was more than 30,000 years actually. I'm sorry, 30,000 years ago, humans used to make pictures of animals, plants, stick figures बनाते थे, fire बनाते थे, to tell stories. There was a discovery in France, in the caves of France, and it dates back to 36,000 years ago. And that story, which is described through pictures in that cave, that story is about a volcanic eruption. So humans have always used stories to make sense of the world we live in and to share that understanding, that sense with others. बचपन स्टोरीज के बगैर बिल्कुल अधूरा है. If there is no storytelling sessions, बचपन में कोई फायदा ही नहीं, कोई मजा ही नहीं है. As a child, I myself have very fond memories of listening to the stories from my nani, my mom, my khala, and my Islamia teacher. Allah miya unko jannat naseeb kare. Beautiful person. And I believe they used to tell stories about prophets, the independence of Pakistan, how wars happened in the initial stages of Pakistan, and मुझे कहानियाँ चोरी चकारी thefts की, different events की, ज़लज़ले की कहानियाँ ऐसी बहुत अच्छी लगती हैं. So I have all sorts of memories in my mind. And in fact हज़रत मोहम्मद की कहानियाँ, हज़रत मूसा की कहानियाँ, हज़रत यूसुफ की कहानियाँ, ये सब जो है ना, इनका फर्स्ट हैंड नॉलेज इन्हीं चाइल्डहुड स्टोरीज से है. And it will not be wrong if I say that stories were the first connection, my first connection with Allah subhanahu wa ta'ala, क्योंकि through stories I knew कि वो कैसे बात करते हैं, उनके नबी कैसे थे. So long story short, what is storytelling? It is an art. ये एक ऐसा आर्ट है जो एक जनरेशन को बाकी सब जनरेशन्स के साथ जोड़ देता है. And it is a way of keeping us all informed and aware. पहले कैसा होता था, अब कैसा होता है. We compare, we get information through these stories. It imparts knowledge and at the same time it electrifies our memory, imagination. हमारी जो मेमोरी, हमारी इमेजिनेशन है, उसके अंदर ना एक करंट सा दौड़ जाता है जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं. आपने अक्सर देखा होगा, इफ वी रीड अ बुक और फिर हम उस बाद में उसी बुक के ऊपर बेस्ड एक मूवी देख लेते हैं, तो हम में से कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मजा नहीं आया, बुक पढ़ने का ज्यादा मजा आया था. और कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बुक से ज्यादा मजा तो मूवी देखने का है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू इमेजिन व्हाइल रीडिंग. आपकी परसेप्शन क्या है, आप हाउ यू आप ग्राफिकली कैसे इमेजिन करते हैं वर्ड्स को व्हाइल रीडिंग. Even Allah subhanahu wa ta'ala has used the art of storytelling in Quran Pak, and He is the best storyteller ever. Now, why should we tell stories to kids? I think along with the regular fairy tales, Cinderella and Pinocchio, वगैरह वगैरह, we all should share our personal knowledge, our personal real life experiences and events as stories with our children and grandchildren. हमारी कहानियाँ उनको बहुत कुछ सिखाएंगी. Our fables are going to teach them a lot, help them a lot. And each one of your listeners, आप जितने बच्चों को भी कहानी सुना रहे होते हैं, जितने लोगों को भी कहानी सुना रहे होते हैं, they will derive something
out of your story, and that something can prove to be beneficial. क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि it is never that a wise share goes without benefiting others. अकल की बात देर सवेर भेजे में घुसती जरूर है. They'll remember you through your stories and the lessons they will derive out of the stories you tell. Now we'll talk about the techniques कि हम एक simple story टेलिंग सेशन को या कहानी सुनाने वाली उस बात को एक रात को हम कैसे वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ पावरफुल जर्नी एंड गिव इट अ टच ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम एक तीर से दो शिकार करें, जो टीचर्स ये चाहते हैं कि हम एक तीर से दो शिकार करें, हम साथ साथ पढ़ाएं और साथ साथ इनको एंटरटेन करें बच्चों को, उनके लिए ये बहुत मजे की बात है. चूज योर स्टोरी वाइजली. बहुत अकलमंदी से अपनी स्टोरी का इंतखाब करें. आपकी स्टोरी में शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए. आपकी स्टोरी में ऐसा कोई पोर्ट्रेयल नहीं होना चाहिए जिसमें ये लग रहा हो कि एक बुरा आदमी था और एक अच्छा आदमी था और अच्छे आदमी के साथ बुरा हुआ और बुरे के साथ कुछ खास नहीं हुआ, कोई उसके ऊपर रेपरकशन नहीं आए. सो योर स्टोरी शुड बी वेरी स्ट्रांग. अगर आप उनको जिंदगी के बारे में सिखाना चाहते हैं, नेकी और बदी का बताना चाहते हैं, तो आपकी स्टोरी बड़ी फोकस्ड होनी चाहिए. इफ इट इज अ ट्रू स्टोरी, you should tell the children in the very beginning. Have you ever experienced कि जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं और हमें पता होता है that it has been based on true events, तो हम there is a caption in the beginning of the movie कि ये स्टोरी जो है ये हकीकी वाकयात पे मबनी है, तो हमारा जो इंटरेस्ट लेवल होता है ना वो और ही होता है. We are more interested. And use very small sentences use करें to capture the attention and to impact more. Use small sentences, use rich vocabulary. Even आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है ना बोलते हुए कि यार शायद ये एज अप्रोप्रिएट नहीं है, ये वर्ड मेरे जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं इनके लिए मुश्किल है, तो भी बोल दें आप. क्योंकि इवन इफ किड्स विल नॉट क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग, they'll understand it through the context and the way you will construct your sentences. Use a variety of adjectives. Adjectives are very important. They give a very strong stimulation to our imagination. उससे क्या होता है कि बच्चों की इमेजिनेशन बड़ी एफिशिएंटली चलना शुरू हो जाती है. जैसे कि आप स्टोरी सुना रहे हैं कि एक दरख्त के ऊपर परिंदे बैठे थे, तो आप सिर्फ ये मत कहें कि दरख्त पे परिंदे बैठे थे. आप उन्हें बताएं कि एक बहुत बड़ा सा हरा भरा सा दरख्त था और उसके ऊपर इस रंग के, नीले रंग के, पीले रंग के, सब्ज रंग के डिफरेंट परिंदे बैठे हुए थे. या उनको फिगर दें कि 7 परिंदे बैठे थे या 10 परिंदे बैठे थे. उससे क्या होगा कि उनकी इमेजिनेशन और अच्छे तरीके से काम करेगी. Emphasize on the part where you think that this is the part जहां से इन्होंने बच्चों ने लेसन डिराइव करना है, the main part of the story, जहां पे something important you are telling ना, जो स्टोरी का क्रक्स है. So emphasize on that. And if you feel like आपको रिपीट करनी पड़ती है, 1-2 लाइन्स रिपीट करें. Question the children in between to keep them involved. बीच में सो ही ना जाए ना. तो and encourage the use of 5 senses जो हम करते हैं ना क्रिएटिव राइटिंग में. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखिए जैसे आप स्टोरी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने ये खाया और वो बहुत मीठा था, तो आप साथ उसको ये कह सकते हैं कि और इतना मीठा था जैसे कि हमने आइसक्रीम खाई थी तो वो कितनी मीठी थी. सो इट विल कीप देम इन्वॉल्व्ड और उनकी जो 5 सेंसेस है वो ट्रिगर्ड रहेंगी, वो ज्यादा असर करेगी ये चीज. एंड कीप एन आई कॉन्टैक्ट. बच्चों के साथ कहानी सुनाते हुए बारी बारी एक एक करके सबके साथ आई कांटेक्ट करें. उससे बहुत फर्क पड़ता है. बच्चे को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अटेंशन मुझे मिल रही है और आपको भी एहसास होता रहेगा कि बच्चा किस हद तक आपसे इंटरेक्ट कर रहा है. गिव देम अ चांस टू पार्टिसिपेट. if there is a part in a story where they want to improvise or they want to change it, या फिर एक ही स्टोरी जो आप दोबारा सुना रहे हैं तो आपको अगर वो कहते हैं मामा इसमें ऐसे क्यों होता है, तो आपको अच्छा चलें आप बताएं फिर इसमें कैसे होना चाहिए. So this can also prove to be very beneficial for the children. And shift the role. किसी दिन जब आप बहुत थके हुए हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा है, आपके पास कोई नई कहानी नहीं है, या for any reason, shift the role. Shifting the role can be wonderful, especially आपका मूड नहीं है, आप असाइन करते हैं डेज
assign the days when the kids will hold the sessions. उनको in charge बना दें. Let them be, in charge of the sessions. And it will instill freedom. It will instill confidence. It will stimulate the critical thinking in them. उनकी creativity boost होगी, and their speaking as well as listening skills जो है ना, वो सारी साथ साथ improve होंगी. इनफैक्ट writing की भी improve होंगी. Appreciate जब वो सुना रहे हो, when they are holding the sessions, they are in charge, they are the boss, तो appreciate them. बहुत खुल के वाह वाह करें, बहुत अच्छे तरीके से उनको रिएक्शंस दें, द बेस्ट ऑफ योर एक्सप्रेशंस उनको दें आप. लाइक अगर कोई डरावनी कहानी सुना रहा है बच्चा, या कोई सीन ऐसा जिसमें कोई ऐसा आंसर है जिसमें देयर इज समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, तो एक्ट करें कि यार मैं डर रही हूँ यार, ओ माय गॉड दिस इज सो स्कैरी. इस तरह से उसको रिएक्शन दे, और वो थोड़ा हंसता है तो आप ज्यादा हंसें. गिव अ होल लॉट ऑफ रिएक्शंस ऑन देम. गुड एंड बैड एलिमेंट्स जो वो डिस्कस कर रहा है, गुड पे उसको अच्छा एक्सप्रेशन दें, गिव हिम अ स्माइल. बैड पे उसको फ्राउन दें, मतलब गिव देम फुल होल हार्टेडली रिएक्शंस दें उनको, सो दैट दे ऑल्सो एंजॉय, और उनको लगे कि ये यार हमारी बड़ी अकम्पलिशमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है ये हमारी. ट्राई डिफरेंट पैटर्न्स, क्योंकि बच्चे भी बड़ी जल्दी बोर होते हैं बच्चों को, तो मोनोटनी को अवॉइड करने के लिए ट्राई डिफरेंट पैटर्न्स. समटाइम्स गिव देम द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, समटाइम्स गिव देम द एंड, समटाइम्स जस्ट अ कैरेक्टर, और समटाइम्स इट कैन बी जस्ट अ सिचुएशन. जैसे कि इट वॉज अ रेनी डे, नाउ यू स्टार्ट, यू गो. बहुत जोर की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, तो इस तरह से वो आपको कुछ ना कुछ आगे वो लेके चल पड़ेंगे. बच्चों की इमेजिनेशन बड़ी मजे की होती है. इनकरेज करें कि वो फिजिकल मूवमेंट्स भी साथ करें, एंड थिंग्स लाइक इफ द चाइल्ड इज नरेटिंग अ स्टोरी, और उसमें वो कहते हैं दैट द बॉय वाज सिंगिंग, कुछ ऐसा कहते हैं, तो आप उसको फौरन कहें कि आस्क हिम टू इमिटेट, कि अच्छा वो गा के दिखाओ जरा कैसे गा रहा था. इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसके अंदर टैलेंट्स जो है वो पॉलिश होंगे, एंड इट विल गिव अ रियल ग्राफिक ऑफ हिज ओन इमेजिनेशन. सो एंड इफ यू वांट टू असाइन, अगर आप करना चाहते हैं, तो दिस इज यू बीइंग वेरी मोर क्रिएटिव इन फैक्ट, बट इट हैज प्रूव टू बी वेरी प्रोडक्टिव इन माई केस. तो आई वुड सजेस्ट कि आप असाइन करें वीक्स को टू डिफरेंट जॉनरास. लाइक एक दफा फोक टेल्स कर लें, एक दफा कोई हिस्टोरिकल कर लें, किसी सिविलाइजेशन से रिलेटेड कर लें. सो दिस वे योर चिल्ड्रन विल एक्सेल in general knowledge, history, geography, literature, vocabulary and creative writing. At the same time ये सारा कुछ वो कर रहे होंगे, सब सीख रहे होंगे, और होगा क्या, एक आम सा स्टोरी टेलिंग सेशन. So this is how you can make, एक आम सी, जैसे हम हर रात कहानियां सुनाते हैं अपने बच्चों को, you can make this session, this time, this moment as a very helpful tool in parenting and teaching. If you like it, please subscribe, hit the like button. I'll be waiting for your feedback and suggestions. Have a very good day. Thank you. Allah Hafiz. Bye-bye.